ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پاس والی بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ غوث پاک کیا ہیں؟ آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں، لوگ غوث پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا، غوث پاک کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آگے بڑھتے بڑھتے سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ سرکار غوث پاک جیسے ولیوں کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہماری نسبتیں ان کے ساتھ ہے، کیونکہ غوث پاک نے فرمایا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرے دل سے، فرماتے جو مجھ سے دل سے محبت کرے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، پھر میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا، اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا، جب تک میں نہیں چاہتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پہ میرا نام آتا ہے تو پھر اس پر مصیبتیں رہ نہیں جاتی، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا۔ یہ غوث پاک ہے۔ غوث پاک کو کیا سمجھے کوئی، یہ وہ عظیم ذات ہے، اللہ اللہ۔ اولیاء کے متعلق امام اہل سنت کہتے ہیں، میرے امام نے کہا سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ سکر کہتے ہیں ولایت کی ایک منزل ہے، ولایت کی ایک منزل ہے، اس کو کہتے ہیں سکر۔ ولی ایک مقام پر ایسی منزل پہ پہنچتا ہے کہ اس کی عقل اللہ رب العزت کی ذات میں فنا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مقام سکر۔ اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہتا، لیکن رہتا تو وہ ولی ہے نا، سکر میں ہے لیکن رہتا تو ولی ہے۔ اب میرے امام کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے۔ جب سکر کے جوش والا ولی میرے غوث کو نہیں جان سکتا، ہے تو ولی لیکن سکر میں، وہ کیا جانے غوث پاک کو؟ تو جو سکر میں ہو وہ غوث پاک کو ولی ہو کر بھی نہیں جان سکتا، تو جو ولی ہی نہ ہو وہ غوث پاک کو کیسے جان سکتا ہے؟ تو غوث پاک کا مقام کس سے پوچھے، کس سے پوچھے ان کا مرتبہ؟ وہ کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اگر غوث پاک کا رتبہ پوچھنا ہے تو خضر علیہ السلام سے پوچھو۔ ایک ولی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی تو اس نے پوچھا خضر علیہ السلام سے کہ عبد القادر جیلانی کیسے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں ان جیسا ولی نہ ان سے پہلے ہوا نہ ان جیسا ولی قیامت تک ان کے بعد ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان کی زندگی کے متعلق، ان کی شان کے متعلق ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات اختتام کی طرف، اس لئے کہ مزید دو عنوان پہ اور گفتگو ہونے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، حضور غوث پاک کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ، ان کا مقام کیا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑے بڑے اولیاء آتے تھے، بڑے بڑے اولیاء، بلکہ ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگانے والے مقام ولایت پا جاتے تھے۔ استعمال نہیں کرتا، کیا کہا، پڑا ہوا ہے دروازے پہ، پڑا ہوا ہے ایک بندہ، اور اس قادری غلام سے کہتا ہے بھئی جانا غوث پاک کے یہاں تو ذرا میری سفارش کر دینا، عرضی لگا دینا کہ غوث پاک مجھے معاف کر دے، غوث پاک مجھے معاف کر دے، اس طرح کی عرضی لگا دو۔ اب اندر وہ غوث پاک کا غلام پہنچا، کہا سرکار دروازے پر ایک بندہ پڑا ہوا ہے اور وہ آپ سے معافی کا خواستگار ہے کہ آپ اس کو معاف فرما دیں۔ آپ نے مسکرا کر اس قادری غلام سے فرمایا اپنے مرید سے، بیٹا جانتے ہو وہ کون بندہ ہے؟ عرض کی حضور نہیں جانتا۔ فرمایا بیٹا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ابدال ہے، ابدال۔ ابدال سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ولی ہزاروں ہوں گے، لاکھوں ہوں گے ہر دور میں، لیکن ابدال ہر دور میں صرف 40 ہوتے ہیں۔ یعنی کتنی محدود نشستیں ہوتی ہے ابدال کی، ہزاروں لاکھوں اولیاء ہوں گے لیکن ابدال صرف 40 ہوتے ہیں۔ اور یہ ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے بارش برستی ہے، ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے اناج اگتا ہے، ابدال وہ ہیں جن کی برکت سے جنگوں میں فتح ملتی ہے،
गौसे पाक फरमाते बेटा वो अब्दाल है, अब्दाल। और कहाँ है अब्दाल? गौस पाक की चौखट पे पड़ा हुआ है। कहा वो माफी इसलिए मांगता है कि उससे कसूर हो गया है। कहा हुजूर कसूर क्या हो गया है? फरमाया कि वो और उसके और 2 साथी, ये 3 मिलकर बगदाद मोहल्ला की फजाओं में उड़ रहे थे। ये तीनों उड़ रहे थे। जब मेरा घर आया, मेरी खानका आई, तो एक अब्दाल दाएं हो गया कि गौस पाक की खानका इसके ऊपर से नहीं जाना। दूसरा बाएं हो गया कि गौस पाक की खानका इसके ऊपर से नहीं जाना। इनके दिल में ख्याल आया अब्दुल कादिर भी वली है, मैं भी तो वली, वो भी वली, मैं भी वली, उसकी खानका के ऊपर से उड़ के जाने में हरज क्या है? तो वो मेरी खानका के ऊपर से जाने लगा तो अल्लाह ने उसको उठा करके यहाँ फेंका और वो यहाँ पर आ गया, इसलिए कि मेरी खानका के ऊपर से जा रहा था, इसलिए उसका ये अंजाम हो गया। लेकिन तुमने सिफारिश की, जाओ, मैंने उसको माफ कर दिया। इधर गौसे पाक ने माफ किया, उधर वो हवाओं में परवास करने लगा। क्या बात है। अगर गौसे पाक की खानका के ऊपर से अब्दाल जाने की कोशिश करे तो जमीन के ऊपर उन्हें डाल दिया जाता है। ये गौसे पाक का मकाम है। अल्लाह अकबर। और बात उनकी आई है तो अर्ज करूं तो उनके यहाँ बड़े बड़े लोग आते थे, सुबह शाम बड़े बड़े लोग, औलिया का मजमा। बल्कि उनके खिताब में तो उनकी महफिल की शान बढ़ाने के लिए खुद मुस्तफा जान रहमत भी तशरीफ लाते हैं। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिज़र अलैहिस्सलाम भी आते हैं, मौला अली भी आते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आते हैं महफिल को 4 चांद लगाने के लिए। बल्कि एक मर्तबा गौसे पाक फरमाते हैं अपने साथियों से कि आज हमारी महफिल में मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए थे और मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर आए थे। और आका ने मुझे देखकर फरमाया कि मूसा देखो, ये मेरा बेटा अब्दुल कादिर है, क्या इस जैसा वली आपकी उम्मत में कोई है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की नहीं या रसूल अल्लाह, मेरी उम्मत में ऐसा वली मौजूद नहीं है। ये है गौस पाक की शान। तो आपकी बारगाह में बहुत लोग आते थे। आपकी चौखट पर एक शख्स बैठते थे, बड़ी सादी तबीयत के आदमी। आपकी चौखट पे एक शख्स बैठते थे। उनका काम था, उनकी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी ये थी कि जो गौस पाक के मेहमान आए उसको इस्तिंजा के लिए लोटे में पानी भर करके दे, उनको वुजू के लिए लोटे में पानी भर कर दे। देखो गौस पाक की चौखट पे बैठा हुआ कुत्ता भी हमारे नजदीक काबिल एहतराम है। मैं कोई बेअदबी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये छोटे मोटे काम हम उन्हीं को देते हैं आमतौर पे जो आदमी किसी काबिल नहीं होता। सही है, ऐसे ही होता है ना, छोटे मोटे काम छोटी मोटी तबीयत के लोगों को दिया जाता है। लेकिन उनको उनकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। जिसको लोटे में पानी भरने के लिए दिया गया हो, आखिर बजाहिर उनका इल्मी मियार क्या रहा होगा, उनका तकवा क्या रहा होगा, उनकी परहेजगारी क्या रही होगी, जो भी रहा होगा। तो गौस पाक की चौखट पे बैठे और कितने साल तक बैठे? कमोबेश 40 साल तक। बाज लोगों ने 20 साल भी कहा, 20 साल या 40 साल तक गौस पाक की चौखट पर वो बैठे। बस काम एक था, लोटे में पानी भर कर देना, इस्तिंजा के लिए, वुजू के लिए मेहमानों को पानी भर के देना। एक दिन उनके दिल में एक वसवसा आया कि मैं 40 साल से बैठा हूं यहां गौस पाक की चौखट पे, गौस पाक ने मुझे दिया क्या? गौस पाक ने मुझे दिया क्या? कभी कभी शैतान वसवसे पैदा करता है, मुझे दिया क्या, ये ख्याल आना था। उस दिन गौसे पाक के यहां 2 अब्दाल आए थे सरकार से मिलने के लिए, फैज लेने के लिए, खैरात लेने के लिए आए थे। उन दोनों को देखकर उस बुजुर्ग ने, उस लोटे वाले बाबा ने उनसे कहा कि मैं बरसों से बैठा हूं मुर्शिद की चौखट पे, मैं चाहता हूं कि आपके साथ चलूं, आप लोगों के साथ चलूं। किस मुर्शिद की चौखट पे बैठा इसकी कोई वजाहत नहीं की, बस यूं ही कह दिया अपने मुर्शिद की चौखट पे मैं बरसों से बैठा हूं, लेकिन आज आपके साथ चलना चाहता हूं। दोनों अब्दाल ने कोई तवज्जो नहीं की, लेकिन उन्होंने कह दिया ठीक है चले। अब वो दोनों लेकर के चले। चलते चलते चूंकि उन्होंने वजाहत नहीं की थी कि कहां से आ रहे हैं, मुर्शिद कौन है, कुछ नहीं, उन्होंने पूछा भी नहीं। ये सब कुरेदना तो हम लोगों को आता है ना, वो लोग अब्दाल थे दोनों। उन्होंने सोचा कि चलते हो तो चलो। कुछ दूर चले इनके साथ पैदल, तो इन्होंने उनसे कहा कि हजरत हमें भूख लगी,
उन दोनों बुजुर्गों से कहा हमें भूख लगी, क्योंकि गौस पाक में यहाँ तो 24 घंटा लंगर जारी रहता था, खाने पीने के बड़े मजे थे वहां, लेकिन यहाँ तो सफर में आए पहली बार बरसों बाद, अब मुझे भूख लगी। उन्होंने कहा देखो हम अब्दाल लोग हैं, हम ऐसे बार बार खाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग 24 घंटे में एक बार खाते हैं, अगर आपको हमारे साथ चलना हो तो चलो, वरना घर वापस लौट करके जाओ, अपनी मंजिल अपनी जगह पर जाओ। उन्होंने कहा अब निकल गए हैं तो चलो। इसी को कहते हैं कि जब मुस्लिम में सर डाल दिया तो अब जो है वो, हाँ, उसकी मार से उसकी चोट से अब खौफ क्या है, तो इस वजह से चले तो अब चले, निकल गए। 24 घंटे पूरे बीते, भूखे रह रह कर हालत खराब हो गई, अजीब हालत हो गई। 24 घंटे के बाद फिर कहा रहम करो बहुत भूख लगी है, तो वो एक जगह रुके, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ की, तो 3 प्याले और 3 रोटियां आसमान से जमीन पर आई, एक एक प्याला तकसीम किया, एक एक रोटी ली, तीनों ने खा लिया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। लेकिन फिर आगे बढ़े, फिर अब जहन बन गया कि 24 घंटे बाद ही खाना मिलेगा। फिर 24 घंटे गुजरे, इन्होंने फिर कहा भूख से बुरा हाल है, कुछ खिलाओ तो सही। फिर दूसरे ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर दुआ की, फिर 3 कटोरे, 3 रोटियां आई, तकसीम हो गई, तीनों ने खाया। तीसरा दिन आया, फिर कहा 24 घंटे हो गए, भूख से बुरा हाल है, कुछ खिलाओ तो सही, कुछ पिलाओ तो सही। तो उन दोनों ने कहा देखो ये हमारा उसूल है कि जो हमारे साथ रहता है हम एक एक दिन बांट लेते हैं। परसों हमने दुआ की थी, कल इन्होंने दुआ की थी, आज बारी आपकी। क्या बात है, खाना आपको मंगाना है। उन्होंने कहा अरे भाई मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैं कोई पहुंचा हुआ इंसान नहीं, मैं ये सब काम नहीं कर सकता कि आसमान से खाना मंगाऊं, आपको ही मंगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमारा उसूल तो यही है, जो हमारे साथ चलेगा वो खाना मंगाएगा, और हम जब तक के बारी नहीं आती ये जुर्रत नहीं कर सकते। या तो भूखे रहो, अगर नहीं मंगाने की ताकत है, खाना नहीं मंगा सकते तो भूखे रहो, जो चाहो करो, लेकिन हम ये जुर्रत नहीं करेंगे। कहते हैं मरता क्या ना करता। इन्होंने भी 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से इसकी मौला मैं तो कुछ मांगना जानता नहीं हूँ, आदाब नहीं जानता, लाज रख ले मौला और खाने का नुज़ूल फरमा दे ताकि हम खा के आगे बढ़े। लेकिन जब इन्होंने दुआ की तो उस वक्त 6 कटोरे उतरे और 6 रोटियां उतरी, और उसके बाद 2-2 कटोरे तकसीम हुए, 2-2 रोटियां तकसीम हुई। उन दोनों अब्दाल ने कहा भाई तुम तो कहते थे तुम सीधे साधे आदमी हो, तुम मांगने का ढंग नहीं जानते, आखिर हमने मांगा तो एक एक आया, तुमने मांगा तो 2-2 आया, आखिर तुम हो कौन? अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह के आप मुझसे पूछते हो कौन हो, मैंने तो कोई खास दुआ नहीं की, ये अल्लाह का करम है कि 2 कटोरे उतरे एक एक के लिए। मैंने तो इतना का मौला मुझे कुछ आता जाता नहीं है, बस मौला लाज रख ले और खाने का इंतजाम फरमा दे, तो मेरे अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। लेकिन ये तो बताओ आखिर तुम क्या कह करके दुआ मांगते हो? मैंने तो सीधी सादी दुआ की और 2-2 कटोरे आ गए, लेकिन तुम क्या कह के दुआ मांगते हो? उन दोनों ने कहा बाबा हम दोनों अब्दाल है अब्दाल, और जब हमें 24 घंटे के बाद खाने की हाजत होती है तो हम 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, और 2 रकात नमाज पढ़ के हम यूं दुआ करते हैं, ए अल्लाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी